أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کیسے ہیں میرے پیارے طلباء؟ خیریت سے ہیں؟ سب خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. ناشتہ وغیرہ کچھ کیے؟ سب ماشاء اللہ سب کیے. اچھی بات ہے. تو پچھلے سبق میں کیا کیا پڑھے سب کو یاد ہے؟ کچھ لوگوں کو یاد نہیں ہے لگتا ہے، خاموش ہے. نہیں، سب کو یاد ہے. ماشاء اللہ، ایسے ہی یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سب لوگ فاتحہ پڑھ لیے؟ ماشاء اللہ. اور ٹوپی وغیرہ پہنے ہیں، کتاب سب کھول کے بعد اب کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک سب کر کے سب بیٹھے ہوں گے، ہے نا؟ سب باوضو کے ساتھ بیٹھے ہیں نا؟ کسی کا وضو ٹوٹا ہے کیا؟ نہیں. سب کو وہ باتیں یاد ہے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یاد ہے؟ ماشاء اللہ. کتنے باتیں ہیں؟ ہاں، 4 باتیں ہیں. ماشاء اللہ، سب یاد کیے ہیں. انشاءاللہ وہ سب امتحان میں پوچھا جائے گا. صرف امتحان کے لیے نہیں پڑھنا، کیا اپنے زندگی میں عمل میں بھی لانا ہے وہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ نماز کے لیے جو تیاریاں ہیں وہ کر رہے تھے. یعنی نماز جانے سے پہلے پاک ہونا ہے نا؟ تو پاک ہونے کے لیے کیا کیا چاہیے؟ پانی پاک رہنا چاہیے، اس کے بارے میں چرچا ہو گیا. اور اس کے بعد پانی صرف پاک ہو گیا تو کافی نہیں ہے، ہمارے بدن وہ سب کے بارے میں چرچا ہوتے ہوئے آ رہا ہے. تو اسی میں ہم لوگ کیا پڑھے؟ وضو کے بارے میں چرچا کیے. وضو کی شرائط، فرائض اور سنتیں پڑھے. اس کے بعد وضو کب ٹوٹ جاتا ہے، کیسے ٹوٹ جاتا ہے نا؟ وہ باتیں بھی پڑھے. اتنا پڑھے تو بھی کافی نہیں ہے. کیوں؟ اس کے علاوہ یہ سب حدث اصغر ہے. حدث اصغر سے ہم جو حدث اصغر ہونے کے بعد ہم لوگ جو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وضو کرنا پڑتا ہے. اگر حدث اکبر ہو گیا، یعنی بڑے گندگی بولیں گے، بڑی گندگی ہے نا، تو اس سے پاک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم کو غسل کرنا ہے، یعنی نہانا ہے. نہائے بغیر اس کو کیا نہیں ہوگا؟ پاک نہیں ہو سکتا ہے. تو ایسے صحیح سے نہائے بغیر اگر نماز پڑھے تو نماز صحیح ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم لوگ آج کیا کریں گے؟ ایک نئے سبق کے ساتھ شروع کریں گے. کیا ہے وہ سبق؟ کتنا ہے سبق کا نمبر؟ 11. کیا ہے سبق کا نام؟ غسل کا بیان، یعنی نہانے کا بیان. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا چرچا چل رہا ہے دیکھیں گے. نہانا بولے تو، غسل بولے تو کیا ہے؟ غسل کب واجب ہوگا؟ حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نہانا چاہیے، یعنی غسل کرنا چاہیے. وہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی
हदस अकबर से पाक होने के लिए नहाना वाजिब है, उसको क्या कहते हैं? गुस्ल करना। समझे? तो गुस्ल वाजिब होने के लिए कुछ बातें हैं, कुछ 5 बातें हैं जिससे क्या होता है? गुस्ल वाजिब होता है। इंशाअल्लाह हम लोग एक बयान करते हुए पढ़ते हुए आएंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले बात क्या है? फर्स्ट वन क्या है? मनी खारिज होना। अगर मनी खारिज हो गया तो क्या होगा? गुस्ल वाजिब होगा। उसमें वजू किया तो काफी है क्या? नहीं, वजू किया तो काफी नहीं होगा उसमें। उसके लिए क्या करना है? मुकम्मल से नहाना है, तभी क्या होगा? वो पाकी हासिल होगी। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट? मनी का खारिज होना। ठीक है, अब मनी बोले तो क्या है? आप लोग सब बड़े हो गए, तो बालिग होने के लिए एक 15 साल होते वक्त पेशाब करने के जगह से एक चीज निकलता है, सफेद कलर का एक चीज निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। कुछ गाढ़ा रहता है वो। इंशाल्लाह उसके तफसीलन आप बड़े क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो वो चीज अगर निकल गए, कब? 15 साल के बाद। 15 साल होते वक्त क्या होगा? वो निकलेगा। उससे क्या होगा? एक बच्चा क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा बच्चा होगा, यानी बालिग होगा। तो वो निकलने से क्या होगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी बात क्या है? मुबाशरत फाहिशा करना, यानी हश्फा का औरत के आगे या पीछे या मर्द के पीछे दाखिल होना। फाइल मफूल दोनों पर गुस्ल वाजिब है। इसमें ज्यादा चर्चा करने के लिए कुछ नहीं है। यानी मियाँ बीवी और शौहर आपस में मिलना। आपस में मिलने से, मिलना बोले तो सिर्फ टच होना नहीं है, उनको आपस में मिलने से क्या होगा? वजू टूट जाएगा। मुबाशरत करने से क्या होगा? वजू उन पर गुस्ल वाजिब हो जाएगा। समझे? इंशाल्लाह उसके बारे में भी आप लोग बड़े होने के बाद मुकम्मल चर्चे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या है? हैज से फारिग होना, यानी जैसे एक बच्चे को क्या होगा? 15 साल के बाद कुछ चीज पेशाब के जरिए से, पेशाब जहां से निकलता है वहां से कुछ चीज निकलने से क्या, सफेद कलर कुछ निकलने से क्या होगा? वो बालिग होगा। उसी तरह औरत को भी एक खून है, एक 9 साल के बाद, 9 उम्र के बाद क्या होगा? वो खून निकलेगा। उससे क्या होगी? वो भी बालिग हो जाएगी। तो उसको क्या बोलते हैं? वो खून का क्या नाम क्या है? हैज है। तो वो निकलने से क्या होगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह चौथी बात क्या है? निफास का खत्म होना। निफास का खत्म होना, ये बात भी किसको? औरतों के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है। तो ऐसे क्या है? 3 चीजें किसको है? औरतों को खास है, और 2 चीज तो चौथा क्या है? निफास का क्या हो? खत्म होना। निफास का खत्म होना मतलब जब एक औरत, एक माँ एक बच्चे को जन्म देगी, तब एक खून निकलेगा। तब एक खून निकलेगी जो 1 सेकेंड के अंदर क्या होगा? निकलते ही खत्म हो जाएगा। उस खून को क्या बोलेंगे? निफास बोलेंगे। तो वो निकलने से भी क्या होगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। और 5वां क्या है? विलादत, यानी विलादत देने के बाद क्या होगा? गुस्ल वाजिब हो जाएगा। ये सब बातें हैं जो कि गुस्ल वाजिब हो सकता है, वाजिब हो जाएगा। ठीक है, ये 5 बातें हैं। क्या क्या है? मनी खारिज होना, और मुबाशरत फाहिशा करना, यानी आपस में मियाँ बीवी मुबाशरत, मिलना। तीसरा क्या है? हैज निकलना। हाँ, और चौथा क्या है? निफास का खत्म होना। और 5वां क्या है? विलादत, यानी एक बच्चे को जन्म देने से क्या होगा? उस माँ को गुस्ल करना वाजिब है। ठीक है, अब गुस्ल के भी कुछ शराइतें हैं, है ना? जिस तरह हम लोग वजू में पढ़े थे, उसी तरह गुस्ल को भी क्या है? 5 शराइत हैं।
वो शराइत कौन सा है जो वजू में पढ़े थे। वजू में क्या क्या कितने शराइत पढ़े थे हम लोग, 5 शराइत पढ़े थे। याद है किसी को, याद नहीं? हाँ याद है, सबको याद है माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सब एग्जाम में भी लिखने के लिए आएगा और उसको क्या करना है, ध्यान में रखना है, अपनी जिंदगी में क्या करना है, उसको अमल में लाना भी है। वो 5 शराइत क्या करना है, याद रखना है। क्या क्या बता सकते हो आप लोग, क्या है? पानी ताहिर और मुतहिर होना एक। दूसरा क्या है, धोने के आज़ा पर पानी बहाना। तीसरा क्या है, आज़ा में ऐसी चीज़ों का ना होना जो पानी को क्या कर सकता हो, तगय्युर कर सकता हो, है ना। चौथा क्या है, आज़ा में ऐसी चीज़ नहीं होना जो खाल तक यानी खाल तक पहुँचने में क्या, पानी को पहुँचने में तकलीफ हो, रुकावट हो। यानी चौथा, आज़ा में ऐसे चीज़ों का होना जो कि पानी को खाल तक पहुँचने में क्या हो सकता है, रुकावट हो सकती हो, ऐसे चीज़ें नहीं होना किसमें, चमड़े के ऊपर, है ना। पांचवा क्या है, माज़ूर को नमाज का वक्त होना और उसका इल्म भी होना है। ये 5 बातें हैं जो 5 शराइत है जो वजू में क्या है, शर्त है। और उसी तरह किसमें भी शर्त है, ये गुस्ल में भी शर्त है। ठीक है, समझ में आ गई ना बात सब? तो ठीक है, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन। तो कितने गुस्ल के वाजिब होने की कितने चीजें हैं, कितने बातें हैं बताइए? 5 बातें हैं। क्या क्या है? मनी का खारिज होना और मुबाशरत फाहिशा करना। तीसरा, हैज निकलना। चौथा, निफास का ख़त्म होना। पांचवा, विलादत। और इसके गुस्ल के शराइत क्या है, कितने हैं? 5 हैं। क्या क्या है, याद है ना आप लोगों को? ठीक है इंशाअल्लाह। तो आगे देखिए, अब हैज के बारे में बोले। हैज बोले तो क्या है, बता दिया है ना। हैज बोले तो एक बच्ची बड़े होने का जो वक्त, वो उम्र में पेशाब करने की जगह से क्या होगा, कुछ खून निकलेगा। उस खून को क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे। हाँ, वो कब निकलेगा, कम से कम 9 बरस की उम्र में वो शुरू हो जाएगा। कितना उम्र होना है, 9 एज कितना रहना है, 9 एज में वो क्या होगा, शुरू हो जाएगा। और हैज की कम से कम मुद्दत कितना है, 1 दिन है। वो 1 दिन में निकलेगा, खत्म हो जाएगा, समझो। वो कम से कम उसकी मुद्दत है। उससे भी ज्यादा हो गया तो एक दरमियानी मुद्दत कितना है, 6 या 7 दिन हो सकता है। वो खून ऐसे ही निकलते रहेगा, बार बार क्या होता है, निकलते रहेगा। वो कितना, 6 या 7 दिन है इसकी दरमियानी मुद्दत। और ज्यादा से ज्यादा कितना दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है। खून ऐसे ही बार बार निकलना कितना दिन हो सकता है, 15 दिन तक ये हैज के खून क्या निकलते रहेगी। अगर इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, ये बीमार भी होने का चांस है, बीमारी भी होने का चांस है। ठीक है। और 2 हैजों के दरमियान कम से कम तहारत की मुद्दत कितना है, 15 दिन है। 2 हैज यानी एक हैज बोले तो उसका एक मुद्दत कितना है, 1 दिन है। या दरमियानी मुद्दत कितना है, 6 या 7 दिन है। ज्यादा से ज्यादा कितना है, 15 दिन है। अगर 15 दिन ऐसे लगातार खून निकलते रहा तो एक हैज है, खत्म हो गया। और एक हैज से दूसरे हैज यानी दोबारा हैज ऐसे महीने में औरतों को होते रहता है। तो दूसरे हैज शुरू होने के दरमियान कितने दिन की मुद्दत होगी, 15 दिन की, कम से कम कितने दिन की, 15 दिन की मुद्दत होगी। ज्यादा की कोई हद नहीं। इधर हैज निकलने के क्या बोलते, कम से कम की मुद्दत बोले, दरमियानी मुद्दत बोले, और ज्यादा से ज्यादा से कितना हो सकता है वो मुद्दत बोले। मगर तहारत की मुद्दत कितना है, कम से कम 15 दिन है। और ज्यादा उसका कोई हद नहीं, कभी भी कितना भी हो सकता है तहारत का। ठीक है, या तो 15 दिन होगा, या तो 1 महीना भी हो सकता है, या 2 महीना भी हो सकता है। ठीक है। और विलादत का खून,
पढ़े ना हम लोग 5 चीज़ पढ़े थे गुस्ल वाजिब होने के। उसमें क्या है, विलादत में जो निकलता है खून, यानी निफास का खून, उसको भी क्या बोलेंगे, निफास ही बोलेंगे, निफास का खून भी बोलेंगे। उसका मुद्दत कितना है, कम से कम सबसे कम मुद्दत कितना है, 1 सेकेंड है। क्या होगा, विलादत होते ही क्या होगा, खून बाहर आएगा, निकल जाएगा, वो जो निफास खून है। कितना है, 1 सेकेंड है। और दरमियानी मुद्दत कितना है, 40 दिन है। यानी विलादत होके 40 दिन तक क्या होते रहेगा, वो खून ऐसे ही बार बार निकलते रहेगा, उसका निकलने का इतना दिन है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन हो सकता है, 60 दिन। कितना, 60 दिन तक ऐसे ही खून निकलते रहेगा, ये विलादत का खून, समझे ना। हैज़ बोले तो क्या है, और हैज़ के कम से कम का मुद्दत कितना है, दरमियानी मुद्दत कितना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन है, और हैज़ और तहारत के दरमियान कितने मुद्दत है, और उसका ज़्यादा मुद्दत कितने है, ये सब पढ़े ना। और विलादत यानी निफास का जो मुद्दत है वो कितने हैं, दरमियानी मुद्दत कितने हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, वो सब पढ़े हम लोग। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अभी गुस्ल क्या है, वाजिब है, तो उसका कुछ फ़राइज़ भी हो सकता है ना, जैसे वज़ू का शराइत भी है और फ़राइज़ भी हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे, और सुन्नत भी पढ़े थे। इंशाअल्लाह उसी तरह इसमें भी गुस्ल के कुछ शराइत हम लोग क्या किए, पढ़ लिए, जो कि वज़ू में है, और फ़राइज़ हम लोग पढ़ेंगे। कितने हैं गुस्ल के फ़राइज़, हाँ, वज़ू में कितना था फ़राइज़, 6 है ना, तो इसमें गुस्ल में कितना है, सिर्फ 2 है, 2 फ़राइज़ हैं। क्या है, एक नियत, जैसे वज़ू में हम लोग पढ़े थे, फर्स्ट फ़राइज़ क्या है वज़ू का, नियत है, उसी तरह इसमें भी क्या है, फर्स्ट नियत। दूसरा क्या है, तमाम बदन पर क्या करना, पानी को पहुंचाना, तमाम सर से लेकर पैर के तले तक क्या करना, पूरे जगह जितने ज़ाहिरी बदन पूरा है क्या करना, पानी पहुंचाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फतहिरू, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व इन कुंतुम जुनुबन फतहरू, समझे क्या है, अगर आप लोग जनाबत वाले हो गए, यानी हद से अकबर आपके अंदर पाई गई, तो क्या करना है, पाकी हासिल करना है, तहारत हासिल करना है। वो कैसे होगा, वो गुस्ल करने से ही होगा, उसके अलावा वज़ू करने से नहीं हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, गुस्ल करने के फ़राइज़ में से फ़राइज़ कितने हैं, 2 हैं। तो फर्स्ट क्या है, नियत, और दूसरे तमाम बदन पर पानी पहुंचाना। तो उम्मीद है आप लोग सब गौर से सुने होंगे और समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो उस्तादों से क्या करना है, पूरा मुकम्मल अच्छे से समझना है। जैसे हैज़ के बारे में बताया, और विलादत के खून के बारे में बताया, और दरमियानी दिन का कितना है, और सब पूरा बताया, समझे ना। तो अगर इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो क्या करना है, उस्तादों से पूछकर आप लोग पढ़ना है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पीरियड में भी हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा बात करके बाकी जो सबक है, यानी गुस्ल की जो सुन्नतें हैं, वो सब हम लोग इंशाअल्लाह उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर इतने ही ख़त्म करते हैं। जो हम लोग सीखे हैं, पढ़े हैं, उस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए और हमारा इल्म नाफी बना दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि